Good morning, everyone. Now, apart from that, what I wanted to discuss was that some of you have messaged regarding how to approach the 2024 your exam, and some of you have approached to me with respect to your 2025. Now, for 2024, I would say that please stick to. Some of you are focusing too much on current affairs, and not on your optional. If you're doing that, you are sacrificing something which is very certain for something which is very uncertain. So don't do that mistake. Don't substitute certain things with uncertain things. Current affairs is something which is a little uncertain. You don't know which topic they will ask you from, but you definitely know that what topics are they asking for him optional. So optional is something which is predictable, and we need to capture. We need to make sure that we are good at that game, at your optional, and that goes for even 2025 attempt, that your optional should be your forte. The other thing that you need to be really good at is your subjects. I mean, in the sense, your essay and ethics. That these are, again, ethics per se is not predictable. But you know the kind of questions that they are asking. It might not be one particular topic, but you know that these are the kind of case studies that they ask. This is the taxonomy of case studies. This is the genre of their questions. So again, you enter into some kind of predictability, kind of a domain. And wherever you have predictability, my advice is to ace that particular area first and then go for other things. Not to say that you shouldn't read GS. You can and you should read GS, and you should read. GS first should be your optional, second should be your GS, and then should your current affairs come. So current don't take up current affairs and front load current affairs in your day, because if you go down current affairs by front loading it, what will happen is, and this is a problem that I think a lot of you have faced. The problem that you will have is that you will go down this rabbit hole very quickly, that you will go from one area to another area to another area, and you will not realize how you have wasted 3 to 4 hours of your productive day just on current affairs. So that's not the right approach. The other thing is, you have to be regular. Some of the students have enrolled for the program. Right now we have 27, but we have 47 students actually in the program. So every day I get messages, sir, ye hai, ye hai, ye hai, ye hai. If you have to, the idea behind this program is to instill discipline. Okay. Had I had this, and the reason for this program is, had I had this discipline, I would have worn this T-shirt of Labasna that I'm wearing right now. And when I was a student like you, rather than after going through all the attempts. So the idea is to make you wear this T-shirt when you are in the preparation phase, and that requires a lot of discipline. And that discipline is what we are trying to happen, and that discipline will only come when you're able to sleep on time. Don't be greedy. ग्रीडी what do I mean by greedy is कि मैं रात को एक और घंटा पढ़ लेते हूँ, ठीक है. तो ये वो एक घंटे वाला जो प्रॉब्लम है, वो आगे जाके आपको कल कर लो. उस चीज़ को संडे को कर लो. जो छूट गया वो आप संडे को कर लो. संडे इज द डे व्हेन यू हैव दैट रिजर्व डे. वॉट एवर यू वॉन्टेड टू सर्च, वॉट एवर इज लेफ्ट, यू डू इट ऑन सैटरडे संडे. यू हैव टाइम देयर. So don't be greedy, and that greed will also be reflected in your GS prep as well. हमें क्या लगता है कि अच्छा, एनवायरनमेंट के लिए हमने PMFIS के नोट्स पढ़ लिए, अब मुझे थोड़ा सा और ग्रीड दिखा दे तो मैं इस कोचिंग के भी नोट्स पढ़ लेता हूँ. Rather do one thing 7 times than do, say, 7 different things. So the idea is to, in this preparation phase, is to revise and re-revise and re-revise. And there is this concept in artificial intelligence called as reinforcement learning. हमें रीइंफोर्स करना है अपने अपने जो हमने सीखा है उसको. एंड ऑलवेज ट्राई टू क्वेश्चन, बार बार उस चीज़ को क्वेश्चन करो कि अच्छा, जो मैंने पढ़ा है वो ठीक करा है कि नहीं करा है, और उस चीज़ को कि मैंने जो पढ़ा है उसको मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ. So the 3 phases. First phase is a lot of recall based. Second phase is where मेंस के अंदर जहाँ पर आपको अपना स्किल्स दिखाना है प्रेजेंटेशन का विद अ पर्टिकुलर टाइम लिमिट, कि क्या आप 8 मिनट में आप लिख सकते हो, और उससे पहले आपके दिमाग में क्या क्या है जो आप इंपोर्ट कर सकते हो.
So a lot of mains writing is not extempore. You would have practiced a lot of that in your test series, और आपके दिमाग में 20-30% ऑलरेडी होगा एक टॉपिक को लेके. इट्स जस्ट दैट यू विल ट्राई टू मैनेज इट कि अच्छा जो पूछा गया है उसके हिसाब से कैन आई फिट वॉट एवर नॉलेज दैट आई हैव देयर इन टू दिस पर्टिकुलर आंसर. And then interviews, and again a part of your personality. So let's start off with our class. So folks, Indian Express first. Yesterday's Indian Express, and it's not a problem, folks. It's not a problem if you're doing in the Indian Express of day before. Why it's not a problem? Because then you have all these coaching materials that is available with you to basically have notes available. तो उसमें आपके पास मल्टीपल नोट्स आएंगे. कुछ मिस हो रहा होगा तो आपके किसी ना किसी कोचिंग के उसमें होगा ही होगा. सो इट हेल्प्स यू इन योर नोट मेकिंग. डजेंट मैटर इफ यू आर वन डे बिहाइंड द न्यूज़ पेपर. In fact, you will be surprised, most of you are living in metropolises, but there are students in this class जहाँ पर न्यूज़पेपर एक दिन लेट पहुँचता है. तो वो भी तो क्लियर कर रहे हैं एग्ज़ाम. तो डोंट वरी कि अगर एक दिन पुराना न्यूज़पेपर भी अगर आप पढ़ रहे हो, दैट्स नॉट अ इशू. नाउ फर्स्ट थिंग्स, रिमूविंग. अच्छा, यू शुड बी अवेयर अबाउट, ये मोस्टली वैसे तो उसके लिए है, क्या कहते हैं, इंटरव्यूज़ के लिए है. Because I used to ask a lot of questions from in the interview panel when I was at Vajiram. I used to ask ye questions on NAC rankings and NIRF rankings. So you should be aware about what is this NIRF ranking, what is this NAC ranking, what is this accreditation, and most importantly among this is that how many in general when you are writing on education. So where are our universities ranking in the best universities in the world. So these NAC rankings are in that context are a little important. Then we have a couple of people from Miranda in this group which has topped NIRF ranking. And one thing that you can probably write from this is, you can just pick out some information and then write it in one of your answers. That if you see the QS World Ratings में IIS, Indian Institute of Sciences, is ranked as the best and is ranked above Harvard and Princeton and MIT. So which shows that we have the best of institutions in our country as well. So we have the best of both. We have the best and the worst of both sides. तो ये हम when you are studying a topic called education in paper number 2, ठीक है, या फिर इकोनॉमी के अंदर एजुकेशन देखते हो, तो वहाँ पर एक रीडिंग है. I'll send you that reading on your group, which is by Rakesh Mohan. No, it's not by Rakesh Mohan. It is I'm forgetting the name of the author. It is a part of a book which we study in eco honors. उसमें basically it talks about कि इंडिया में you have these IIMs and IITs which are the best of the world, but at the same point of time if you see primary education, it's down the drains. Similarly, that particular topic also talks about primary healthcare is very bad, but when we talk about our tertiary healthcare, you are a hub of medical tourism. Across the world, people are coming to India for medical tourism, but if you see at the primary level, our healthcare is dilapidated. No, that is not from ID2, that's from ID1. I'm forgetting the name of the book. I'll send you the article anyways. I have it on my system. I'll send you that article. That's a good article to study for your even for your GS, for health and both education. That will give you a very good perspective. And वो generalist answer को छोड़ के आपको बहुत ज़्यादा एक specific flow देगा answer का, and which will be very useful. Then the other second page पे India underlines need for digital health to achieve universal well-being. Now we have this G20 summit that we are having this year, but उसका G20 का health के ऊपर हैदराबाद में you have this summit, and one of the priorities that has been set is universal healthcare. And with respect to, again, as I said, healthcare or education के लिए you need to know a lot of things. And ऐसे जो टॉपिक्स हैं ये प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स हैं folks. If it's a predictable topic, you should have 2-3 quotations ready with you for in your arms,
द मोमेंट दैट यू हैव हेल्थ और एजुकेशन, आप ये कोटेशन डाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल हेल्थ और एजुकेशन के लिए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एज, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी. ये कुछ एज हैं जो हेल्थ और एजुकेशन के साथ अवेलेबल हैं, एंड तो ये आपको लिखना ही लिखना है वहाँ पर. सो यू नीड टू राइट डाउन द नॉर्मल आंसर, बट ऑल्सो यू नीड टू आर्म योर सेल्फ विद सर्टन कोटेशंस ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन जो आप वहाँ पर चिपका सको, कि इमीडिएटली आपका एंड जब आप आंसर कर रहे हो यू हैव दिस कोटेशन. सो मेक दैट इज व्हाई आई एम सेइंग मेक दैट रजिस्टर फॉर कोटेशन, जिसके अंदर यू कैन ऑलवेज कीप अपडेटिंग इट एंड ऑल्सो कीप टैगिंग इट कि अच्छा ये टैग्स कहाँ कहाँ यूज़ होंगे. यू कैन यूज़ द टैग इन हेल्थ केयर, यू कैन यूज़ दिस टैग इन एजुकेशन. सो टिपिकल हेल्थ केयर उसके अंदर ही आपको होगा. दूसरा, you also need to know कि when you are writing an answer on health and education you also need to know कि contribution of GDP. तो जैसे हेल्थ का जो कंट्रीब्यूशन अराउंड 2% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, एजुकेशन का 3.5% है. तो ये जो नंबर्स हैं, दीज नंबर्स यू शुड ऑलवेज रिमेंबर बिकॉज दैट रिफ्लेक्ट्स कि हम कहाँ पर हैं. यू आर नॉट राइटिंग अ जनरली प्योर जनरलिस्ट आंसर, यू आर गिविंग सम कंटेक्स्ट टू इट. And when we talk about healthcare, there are other parameters that we see. For example, there's a parameter called out of pocket expenditure, कि on an average how much expenditure a person is doing out of his own pocket if a health incident or a health accident occurs. So in that case it's around 55-60% in our case. थोड़ा कम हो रहा है पिछले कुछ सालों में. Economic Service of this year is talking about this, but still it is there, it is high. So in that context we are talking about universal health care. So universal health care में and using technology to achieve universal health care, उसके लिए there has been this talk, and what India has suggested is that we can create a $200 million fund for universal health care. But again this is something which is being debated upon, it's not being finalized. Okay, so that is the context with which this article was mentioned. Then coming to page number 7, India to US East Defense Sale Norms, Transfer of Technology. So India and US now have a strategic relationship, and because see we are engaging with US on multiple fronts. We are engaging in US in terms of Quad as well, I2U2 as well. We are a part of their Indo-Pacific basically realm. We are kind of also partnering them in countering China in number of fronts. But at the same point of time, you also need to understand, whenever you are talking about an bilateral relationship, it will have certain areas of cooperation, but it will also have areas of conflicts as well. For example, India और US का trade को लेके तो हमेशा conflict रहता है. In the sense that India और US का, by the way, if you see the trade relationship, we have a very high trade surplus with them. हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इम्पोर्ट कम करते हैं, विच इज़ एन इशू विद यूएस. ठीक है, प्लस वो हमारे बहुत सारे चीज़ों को वो करता है, बैन भी करना शुरू कर दिया है. सो नाउ so you will have these both relationships of conflicting and convergence. यहाँ पर convergence किस चीज़ में है, that we are saying that you have a lot of stringent rules for transfer of technology, and if you really want us to become good partners, you have to have this transfer of technology. To give you an example of transfer of technology is BrahMos. BrahMos was developed by India and basically and Russia together. ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है. S400 ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी. सो ये व्हाट यू वांट इज़, और आज की डेट में जहाँ पर भी हम कोई भी डिफेंस डील कर रहे हैं वहाँ पर हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं. ठीक है, कि यू विल मेक इन इंडिया एंड यू विल ऑल्सो ट्रांसफ़र द टेक्नोलॉजी ऑफ नो हाउ. सो दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड यहीं पे एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और GE का जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिजिनस जेट इंजन्स हैं. ठीक है, maybe if you have time on the weekend, you can read about the kind of fighter jets that are available. There's something called as 5th generation fighter jets. What is this 4.5 generation fighter jets and what is this 5th generation fighter jets? कई बार ये डिफेंस में ना मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, इन सब चीज़ों के ऊपर पूछता है. तो अभी मैं आपको 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के बारे में एक बार पढ़ने के लिए कह रहा हूँ. और एक बार हमारा जो लाइट वेट फाइटर जेट्स है तेजस, उसके बारे में भी एक बार थोड़ा सा पढ़ना कि उसका इंजन क्या है.
what is the configuration of Tejas. Then similarly with respect to defense, we are also cooperating with Germany. साथ में article है that Germany is keen on submarine tech cooperation. और यहाँ पर बेसिकली है कि इंडिया इज लुकिंग फॉर बेसिकली procuring 6 advanced electric submarines under project 75I. Now this project, if you see the first column of this news, I think the first, second, third, fourth, fifth, sixth आपका जो वो है पैराग्राफ है, वो बेसिकली बता रहा है कि प्रोजेक्ट 75I है which deals to how to increase the technology in our submarines. तो दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट कि इंडिया और जर्मनी का भी डिफेंस रिलेशनशिप्स के ऊपर है. तो मेजरली एडवांस कंट्रीज के साथ हमारा डिफेंस रिलेशन, फ्रांस के साथ हमारा डिफेंस रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ फेयर है. ठीक है, तो यू नीड टू हैव दिस पर्सपेक्टिव कि हर इन कंट्रीज के साथ हमारा एक डिफेंस रिलेशनशिप, एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट डिफेंस रिलेशनशिप तो हमारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस है हर कंट्री के साथ. देन कमिंग टू एडिटोरियल फोक्स, editorial, the BRICS rush. Let's see the नहीं पहले वो देख लेते हैं. Stepping backwards is in continuation to the article that we had done yesterday, which is on sedition का मैंने आपको बताया था. sedition 124A IPC आपको पता होना चाहिए. You should remember certain things. तो sedition का जो आपका जो टेक्स्ट है वो आपको वर्बेटम नहीं याद कर सकते, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि what it talks about. That it talks about कि आप basically you are trying to incite some kind of a disaffection. The word is disaffection, and inciting this disaffection. Now this article is talking about the fact that Law Commission has gone even a step back in terms of, rather than जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग थी लास्ट ईयर कि नहीं, sedition has run its course, and you can, when you are writing an answer, you can give an international perspective. लाहौर हाई कोर्ट ने इस साल sedition को, देखो दोनों का फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क दोनों का ब्रिटिश से आ रहा है, हम दोनों के लीगल फ्रेमवर्क के अंदर sedition का प्रोविजन है. लाहौर हाई कोर्ट हैज सेड दैट इन द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो स्पेस फॉर sedition, और हम अभी भी इस चीज़ के ऊपर डिबेट कर रहे हैं. ठीक है, तो यू कैन गिव दैट एग्जाम्पल ऑल्सो व्हेन यू आर राइटिंग सच काइंड ऑफ एन आंसर. सो सेडिशन की डेफिनेशन, और यहाँ पर हमने कहा है कि सेडिशन का हमने प्रोसीजरल नेट्स लगा दिए, इंक्रीज कर दिए. बट प्रोसीजरल नेट से क्या, यू आर सेइंग बेसिकली कि इंस्पेक्टर की रैंक से ऊपर वाला कर पाएगा. बट इफ यू अंडरस्टैंड the kind of education and if you understand, especially if you understand the constabulary of India, I mean they are not very educated. That's a major problem. तो ये SI से नीचे वाला जो मेजर बल्क है पुलिस में जो मेजर रिक्रूटमेंट होता है वो कांस्टेबल लेवल पे होता है. तो वहाँ पर ये जो लॉज पढ़ना, लॉज को समझना, लॉज की एप्लीकेशन बहुत कम होती है. SI से ऊपर वाले लेवल पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होती है, और फिर उसके बाद IPS के लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होती है. सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम. वहाँ पर ओवर एंथुजियाज्म होता है इन दी पुलिस, एंड so you can't expect this procedural norms की procedural norms से आपका काम हो जाएगा. दूसरा कि आपने और enhance कर दिया है इसकी punishment. आप लॉ कमीशन कह रहे हैं 7 years कर दो rather than having it at 3 years versus वो. तो जो हमने already discussion किया है वो ये चीज़ है. And the article is saying that basically all these Maoism, militancy, secessionist movement, these cannot be the reasons to just have this kind of a anachronistic law into our statutes. Then the BRICS rush, again अब BRICS के ऊपर I told you that इस साल BRICS कहाँ पर हो रहा है, it's in South Africa. The other thing that you need to know is BRICS का इस बार 2 मेन फोकस हैं. ठीक है, फर्स्ट फोकस ऑफ BRICS इज कॉमन करेंसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, ये हमने लास्ट क्लास में बात करी थी. द सेकेंड मेजर एरिया इज एक्सपेंशन ऑफ BRICS. नाउ लॉट ऑफ कंट्रीज आर लुकिंग फॉर दिस मल्टीलेटरलिज्म, और क्योंकि वर्ल्ड इज अगेन गेटिंग डिवाइडेड, तो अब हम मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं. कंट्रीज वांट टू जॉइन different, they are going off for shopping basically. This is kind of a
रीजनल ग्रुपिंग शॉपिंग्स कि मैं इसका भी पार्ट बन जाती हूँ, इसका भी पार्ट बन जाती हूँ, इसका भी पार्ट बन जाती हूँ, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यूएन काम नहीं कर रहा. अल्टीमेटली you should have the champion for multilateralism is what? UN, where all countries come together. But instead of that, what we have is countries are shopping for different groupings. जैसे बहुत सारी countries अब BRICS में आना चाहती हैं, ठीक है. It started with only 4 countries, now you have all these countries, and then now you are saying कि आप 10 countries already waiting है. ऐसी बहुत सारी ग्रुपिंग्स बन गई. SCO एक अपने आप में ग्रुपिंग है जो इस बार एक्सपैंड हुआ है. प्लीज़ रीड दिस ईयर्स SCO, कौन सी कंट्रीज आई हैं एंड उनके नेबर्स देखो. SCO का जो फोकस है वो एक कॉन्टिगुअस एरिया है, बेसिकली सारा सेंट्रल एशिया में उसका हार्ट है, ठीक है. बट ब्रिक्स का हार्ट जो है वो कोई जियोग्राफिकल वो नहीं है. इट इज़ बेसिकली लाइक माइंडेड कंट्रीज इन द सेंस इन डिफरेंट काइंड ऑफ एन ऑर्डर. तो वो आपको यहाँ पर देखना है. तो कॉमन करेंसी एंड एक्सपेंशन एंड एक्सपेंशन और कॉमन करेंसी में एक इशू है कि अभी तक हम बायलेटरल लेवल के ऊपर काम कर रहे थे. जैसे रशिया और इंडिया जो है बायलेटरल लेवल पे रुपी में ट्रेड करना चाह रहा था, बट अब मॉस्को कह रहा है कि मुझे डॉलर्स चाहिए, ठीक है. तो ये एक इशू है. एंड this is basically what this is showing is this is the appetite for multilateralism that is ongoing right now. Then this ये no sisterhood you can read both, but हमने बहुत सारे आर्टिकल इस टॉपिक के ऊपर पढ़ लिए हैं. but what I will draw your attention to is again a quotation that you need to write in your books, in your registers. मतलब ये बेसिकली एक पैराग्राफ है जो बड़ा अच्छा लगा मुझे और कहीं पर आप यूज़ कर सकते हो इसको जो जैसे ही लॉ एंड ऑर्डर को लेके आएगा. खुशी बहुत सारी कंट्रीज़ इसलिए आना चाहती हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रुपिंग्स में उनको कुछ फ़ायदा हो जाता है. अब अल्टीमेटली क्या है कि UN के अंदर और WTO के अंदर काम होना चाहिए. UN is the champion where all countries come together. WTO is the champion where all countries come together for trade. But all these multilateral institutions are not working. और बिल्कुल भी कुछ काम नहीं हो रहा multilateral trade institution में. इसलिए या तो हमारी ट्रेड ग्रुपिंग्स बन रही हैं जैसे RCEP हो गया, जैसे हम क्या कहते हैं योर ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप हो गया. तो कंट्रीज आर गोइंग फॉर दिस रीजनल ग्रुपिंग्स. सिमिलरली अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं. जैसे अब नेटो एक ऑप्शन है, ठीक है. बट नेटो इज एन ऑप्शन विच इज़ विच इज़ वेरी वेस्ट ओरिएंटेड. बट पीपल ऑल्सो, इंडिया ऐसी कंट्रीज अपने आप को सिर्फ वेस्ट ओरिएंटेशन तो दिखा नहीं सकता. तो इंडिया क्वाड का भी पार्ट है जहाँ पर वो अलग सेट ऑफ कंट्री के साथ डील कर रहा है. इंडिया SCO का भी पार्ट है जहाँ पर वो सेंट्रल एशिया के साथ डील कर रहा है. इंडिया अब ब्रिक्स का भी पार्ट है जहाँ पर अलग सेट ऑफ कंट्री के साथ डील कर रहा है. सो what I'm trying to tell you is that the global south जो developing countries हैं, it also has aspirations, and but these aspirations are not being talked about at a global forum. तो इसीलिए these small groupings, ये जो छोटी छोटी groupings हैं, these are much more, these are platforms जहाँ पर ये सारी कंट्रीज अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर सकती हैं. क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर सकते हो, ट्रेड के बारे में बात कर सकते हो, डिफेंस के बारे में बात कर सकते हो. सो दीज आर areas where countries, like-minded countries, especially global south वाली countries can come together and sit and discuss on a platform. ठीक है. जैसे अभी मैं एक आई थिंक किसी एक न्यूज़पेपर में हम अफ्रीकन यूनियन के बारे में आज बात करने वाले हैं. तो उसके अंदर वही बात हो रही है कि अफ्रीका के साथ हमारा एंगेजमेंट जो है इस साल G20 से पहले होना चाहिए. आई टॉक अबाउट दैट. अच्छा, जस्ट गो टू सेकेंड कॉलम, फर्स्ट पैराग्राफ. वहाँ पर एक बीच में एक बिल्कुल एंड ऑफ द सेकेंड फर्स्ट पैराग्राफ के बिल्कुल ऊपर एक लाइन है दैट द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज फाइन ऑन पेपर, बट इफ द कोर्ट शाइज अवे फ्रॉम एंटरिंग इनटू एग्जीक्यूटिव डोमेन इन टाइम्स ऑफ ग्रेव कॉन्स्टिट्यूशनल इरोजन द रूल ऑफ लॉ इज द कैजुअलिटी. ठीक है. नाउ दिस इज अ पोस्टर चाइल्ड स्टेटमेंट फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म. जहाँ पर भी आपको जुडिशियल एक्टिविज्म मिलेगा वहाँ पर आप ऐसी चीज़ लगा सकते हो कि वाई द जुडिशरी शुड इंटरवीन इनटू एग्जीक्यूटिव एक्शंस. दिस इज ऑल्सो अ गुड केस जो जहाँ पर आप दिल्ली का जो केस है
वो डाल सकते हो। जहाँ गवर्नर्स जो हैं वो बदमाशी कर रहे हैं वो आप डाल सकते हो, जैसे एन रवि, ठीक है, एन रवि इज़ द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, जैसे ये हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ का, या फिर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। कि एग्जीक्यूटिव अपने आप से काम नहीं कर सकते, एग्जीक्यूटिव पावर अपने आप में होगी तो जो बाकी जो इलेक्टेड लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो क्या करेंगे फिर। इसलिए कई बार जुडिशरी को एक्टिविज्म दिखाना पड़ता है, एग्जीक्यूटिव की स्पेस में आके आके इंटरवीन करना पड़ता है। एंड दिस इज व्हाट इट सेज, दिस थ्योरी ऑफ सेपरेशन इज फाइन इन पावर, but this theory of separation should not be a watertight theory of separation, because otherwise what will happen is that rule of law जो है वो casualty वो सफ़र करना शुरू कर देता है, जैसे दिल्ली के केस में आप कर रहा है। So the court should not shy away from this thing action. So this is a good statement that you can pick up. बाकी जो पूरा है that we have already discussed in a number of articles, so I don't think that is required. हाँ, ये जो आर्टिकल मैं ये बोल रहा था ना, कौन सा आर्टिकल है ये, गुरजीत सिंह, इट्स टाइम फॉर अफ्रीका। सो रीड अबाउट दिस अफ्रीका, इंडिया अफ्रीका फोरम। अब 4th इंडिया अफ्रीका फोरम के बारे में बात कर रहे हैं। 3 ऑलरेडी हो चुकी हैं, आपको पता होनी चाहिए 3 कौन सी है। 2 इंडिया में हो चुकी हैं, 2 और 1 एडिस अबाबा में हो चुकी है, फिर 2015 में लास्ट हुई थी। अब बिकॉज ऑफ पैंडमिक जो 2020 वगैरह के टाइम पे होनी थी वो नहीं हुई थी। तो दिस इज़ बेसिकली अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अभी पापुआ न्यू गिनी गए थे, तो एक बार फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन देख लेना। व्हाट इज़ दिस फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। एंड इसीलिए जब आप जहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, जहाँ पर भी जा रहे हो, पर वो जाते बहुत जगह हैं, बट जहाँ पर भी वो जा रहे हैं उसके आसपास की कंट्रीज़ एक बार देख लो कि आपको सारी कंट्रीज़ पता हैं, ठीक है। जैसे वो माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, ये सारी कंट्रीज़ आपको कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं, पापुआ न्यू गिनी कहाँ है, आपको पता होना चाहिए। देन और अगेन पता होने का मतलब यही है कि आप अपना जो कॉपी है वो वर्ल्ड मैप वाला जो रजिस्टर है वो रख रहे हो। मैं आपको आज ही फ़ोटो भेज दूंगा उसकी, आई थिंक राजेंद्र नगर या ऑनलाइन में मिल जाती है। इट्स बेसिकली अ कॉपी वेयर यू हैव, इट्स काइंड ऑफ अ लैंडस्केप मोड रजिस्टर टाइप कॉपी टाइप होता है, बाइंडेड, जिसके अंदर इंडिया मैप्स भी होते हैं, पॉलिटिकल इंडिया मैप्स भी होते हैं, फिजिकल इंडिया मैप्स भी होते हैं, पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप्स भी होते हैं और फिजिकल वर्ल्ड मैप्स भी होते हैं। उसको आपको मेंटेन करना है और उसको उसमें आपको सब कुछ लिखना है, ठीक है। एंड देन आई ऑल्सो, बिकॉज आई विल गेट माई रजिस्टर, उसके अंदर आई विल शो यू मैपिंग एज वेल, कि कैसे आपको रिवर्स के मैप्स बनाना है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे आपको हर रिवर का एक मैप बनाना है, उस सब की ट्रिब्यूटरीज बनानी है, उस सारी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर यू नीड टू मेक कि कौन कौन से डैम्स हैं, कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व हो जहाँ से रिवर ना जा रही हो, क्योंकि अल्टीमेटली इन सबको पानी तो पीना ही है एनिमल्स को, तो ये वहाँ पर प्रॉक्सिमिटी में होंगे। तो आपको उसका पूरा का पूरा मैप जो है रिवर का फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, और स्टेट की बाउंड्री कहाँ कहाँ बना रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर फ्यू एरियाज फोक्स जो आपको अभी से ट्रेन करना है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप प्रेम पटेल से साथ में देखोगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैपिंग करनी है, इंडिया मैपिंग करनी है, तो प्रेम पटेल अपने पास हमेशा रखो, वो आपको अच्छे से बताएगी सारी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ मैपिंग। देयर इज अ बुक कॉल्ड प्रेम पटेल, ठीक है। नाउ अब दूसरी चीज़ यहाँ पर कि ये ग्लोबल साउथ का एंगेजमेंट विद अफ्रीका हमने 2008, 2011, 2015 में किया और उसके बाद हमारे पास वो नहीं हुआ है। नाउ वी आर सेइंग दैट वी शुड हैव अ समिट, एंड अब वो फिर वो डिटेल्स में चला जाएगा कि अब क्योंकि हमें जल्दी से समिट रखना है, इसीलिए वी कांट कॉल ऑल दी 55 कंट्रीज ऑफ अफ्रीकन यूनियन। तो उनका एक तरीका है विच इज़ बांजुल फार्मूला, जिसमें वो 15 कंट्रीज पिक आउट करते हैं कि कौन सी 15 कंट्रीज जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगी अफ्रीका को इन दिस कोऑर्डिनेशन। तो even in African Union there are these permanent and rotational, जो बांजुल फॉर्मेट है उसके अंदर कुछ परमानेंट मेंबर्स हैं which are the most important members, South Africa, Nigeria, Senegal, Algeria, Egypt. These are the most important ones, but what is more important is कि आपको एक बार अफ्रीका का, just a second folks, my battery is draining. आपको अफ्रीका का मैप का आइडिया होना चाहिए। बाद में आपको अफ्रीका के ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज आपको रटी होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप मैपिंग के क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। तो मैपिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर प्रेप इन प्रीलिम्स। सो दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट दिस
यू कैन रीड दिस आर्टिकल, बट जो फर्स्ट 2 कॉलम्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू अदर्स, और इंडिया अफ्रीका रिलेशन में हमें वी नीड दैट कॉन्टिन्यूटी इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड। उसके बाद वो बहुत टेक्निकल चला जाता है कि कौन चेयर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो इतने हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। देन एक्सप्लेन पेज में सिस्टम फेलियर इन ट्रेन क्रैश हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ़ यू वांट टू रीड इट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग तो आप पढ़ सकते हो। इफ़ यू आर इन डिबेटिंग और इफ़ यू आर इन सम काइंड ऑफ सोसाइटी तो आप पढ़ सकते हो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, बट हमारा अभी मतलब वो इतना टेक्निकल कोई आपसे पूछेगा नहीं इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। बट व्हाट वाज इंपॉर्टेंट वाज येस्टरडेज आर्टिकल कि हमारा बहुत ज़्यादा जो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, जो एग्जिस्टिंग वो है हमारे जो रेलवे लाइन्स है। रिमेंबर आई टोल्ड यू कि चाइना का हाफ था हमसे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज हम 1/3 हैं। ये क्रिटिकल फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, और हमने अभी भी अपग्रेडेशन नहीं किया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। देन वो ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर एंड सदर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर एंड फ्रेट ट्रेन्स वर्सेस पैसेंजर, तो हमारा लोड जो है वो सेम ट्रैक्स पे सबसे बहुत ज़्यादा लोड है, तो हम सेम ही ट्रैक्स पे और यूज़ करते हैं। तो दीज आर दी थिंग्स दैट वी नीड टू नो। नाउ 2000 रुपी नोट विड्रॉल, व्हाट्स इन स्टोर फॉर बैंक्स। तो यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है कि 2000 रुपी नोट का विड्रॉल की वजह से क्या बैंक्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, डिपॉजिटर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो आई थिंक आपकी क्लास में नहीं कराया था, मैंने पहले कराया था इस सेशन से पहले कि 2000 रुपी नोट जो है वो हमारी करेंसी का अराउंड 3% ही है। जो करेंसी इन सर्कुलेशन है वो सिर्फ 3% है। मेजर जो 70% जो नोट्स चलते हैं वो 100 रुपी के नोट चलते हैं। एंड दिस 2000 रुपी नोट हैज़ डिक्लाइंड फ्रॉम 49-50% डोमिनेंस था 2017 के अंदर इसका, और वहाँ से गिर के सिर्फ 3% रह गया है। सो देयर फॉर ये आर्ग्यूमेंट दिया गया है कि देयर बिकॉज द यूजेज इज सो लेस, देयर फॉर वी आर गोइंग टू रिमूव देम। बट उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाती है। नाउ when you will study this topic money and banking for GS, या फिर आप ऑप्शनल में तो खैर पढ़ना ही पड़ता है, तो देर इज़ दिस कंसेप्ट ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन। तो ये जो करेंसी इन या करेंसी विद पब्लिक जो होता है वो भी हम कई बार बोलते हैं, तो करेंसी इन पब्लिक जो है और करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वो कम होगा, क्योंकि लोग अपने यहाँ से करेंसी हटा के 2000 रुपये के नोट बैंक्स के पास डाल देंगे, एंड बैंक्स विल बी प्लश विद लिक्विडिटी। यही होगा कि हम सारे नोट्स जाके बैंक्स को दे रहे हैं, बैंक्स का लिक्विडिटी पहुंच जाएगी। बैंक्स के पास जब एक्सेस पैसा हो जाएगा तो क्या होगा, उसके पास पैसा है, उसको इतनी ज़रूरत नहीं है, तो इंटरेस्ट रेट मार्केट में कम होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट वी आर सीइंग, यील्ड्स आर गोइंग डाउन, वी एक्सपेक्ट द इंटरेस्ट रेट्स टू गो डाउन, एंड वी ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट माइट बी द केस दैट बैंक्स डिपॉजिट रेट भी थोड़ा सा कम कर दे, ठीक है। साथ में ये भी चीज़ चल रही है कि इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो गया है, इसलिए वी ऑल्सो ऑन द बैकग्राउंड व्हाट वी हैव इज़ नाउ द MPC इज मीटिंग। अभी 6 से लेके 9 तक MPC की मीटिंग हो रही है। अगर आपको पता नहीं है तो यू नीड टू सर्च MPC क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है अब वो इन्फ्लेशन को देख के वो पॉलिसी मेजर लेगा, और अभी इस बार में जो डिसीजन आएगा वो यही आएगा दैट नो चेंज इन पॉलिसी रेट, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी 4.7% हो गया है। जब कब आएगा डेटा, जब 12th को डेटा आएगा इन्फ्लेशन का, देन आई विल एक्सप्लेन यू इन्फ्लेशन की सारी मेट्रिक्स एज वेल, ठीक है, कि CPI क्या है, WPI क्या है, उसके वेट्स क्या हैं, तब हम वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देन ओके, ये आप पढ़ सकते हो, वैक्सीन टू टारगेट कैंसर व्हाट द न्यू रिसर्च शोज, देख सकते हो। देन व्हाट इज एडवर्स पोजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड इट वाज आल्सो देयर इन, अगर आपने जो कल का मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेजा था इनसाइट्स का, सॉरी नॉट इनसाइट्स का, इसका IS पार्लियामेंट का, तो उसके अंदर एडवर्स पोजेशन ऑलरेडी था। What you can also do is you can one of the students sent me forum IS, I really like that forum IS का current affairs भी, but pick one। देखो ये नहीं, don't be greedy with current affairs, always remember don't be greedy, अपने आप को रिमाइंड करते रहना don't be greedy, ठीक है। जितना हो सके 90 मिनट में एंड में उतना करो, उससे ऊपर छोड़ दो, नहीं आएगा अज्यूम कर लो नहीं आएगा, और एंड के लिए सैटरडे के संडे के लिए रख लो, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो वो टॉपिक वो ऑलरेडी अपनी मैगजीन में इंक्लूड कर देंगे तो वहाँ कवर हो जाएगा,
ठीक है, बट डोंट बी ग्रीडी, ठीक है। सो एडवर्स पोजेशन क्या है? एडवर्स पोजेशन इज कि लॉ कमीशन ने कहा है देयर इज नो जस्टिफिकेशन टू इंट्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन लॉ ऑफ एडवर्स पोजेशन। एडवर्स पोजेशन इज बेसिकली इसका फिलॉसफी जो है, इसका फिलॉसफी आता है हम बुआरी, ये बेसिकली इजिप्शियन उससे कोड से आता है कि लैंड शुड नॉट रिमेन आइडल, और अगर लैंड किसी ने रख लिया है अपना कुछ सालों के लिए तो वो लैंड का ओनर बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली एनीवन हु होल्ड्स अ प्राइवेट लैंड फॉर 12 years एंड अ गवर्नमेंट लैंड फॉर 30 years and the government knows about it, or the other private person knows about that this person is occupying this particular land, then in that case that person will become the owner। जो टेनेंट था वो ओनर बन जाएगा, ओनरशिप का क्लेम कर सकता है अंडर एडवर्स पोजेशन। सो बट अगेन सुप्रीम कोर्ट ने और कई बार हाई कोर्ट ने कहा है कि दिस इज इनअप्रोप्रिएट, कि जस्ट बिकॉज समवन हैज कम टू आई मीन कैप्चर अ लैंड, that doesn't mean that that provides for title or title rights। So this is what the article says, and it is a very harsh and a windfall gain or a windfall loss for a honest person। So this is what this article talks about। और इसमें लिमिटेशन एक्ट भी है। लिमिटेशन एक्ट बेसिकली वही बता रहा है 12 साल और 30 years के जो प्रोविजंस है for this property, and it's based on the maximum that those who sleep over their rights have no right to at a later stage invoke their rights। So this is the maximum on which this adverse possession is based। it's very strange, लॉ कमीशन ने दो चीज़ें दी हैं और दोनों चीज़ें बिल्कुल अजीब सी दी हैं, एक सेडिशन के ऊपर और दूसरा एडवर्स पोजेशन के ऊपर। it has given this kind of a suggestion। then economy, मैंने आपको बताया कि आरबीआई जो है, आरबीआई की मीटिंग चल रही है आज से। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो 6 से 9 तक मिलेगी, एंड it is basically it's a 6-member panel which is going to discuss what should be the policy rate। and given that the inflation in the last month has already reduced to 4.7%, and हमारा जो टारगेट होता है वो 2% से 6% के बीच में होता है। सो इट इज़ ऑलरेडी कम टू दी कंफर्टेबल जोन, और आगे जाके और ज़्यादा ये कम हो सकता है। तो देयरफॉर व्हाट वी आर सेइंग इज लेट दी आई मीन व्हाट वी आर सजेस्टिंग इज, और व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज दैट द पॉलिसी रेट विल स्टिल बी at 6.5%, which is पॉलिसी रेट को ही हम बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट इज बेसिकली रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ अ कोलेटरल। तो मेरे पास कोई कोलेटरल होगा, मेरे पास कोई चीज़ गिरवी होगी जो मैं रखूंगा आरबीआई के पास और शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लूंगा, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। उसका ऑपोजिट जो होता है उसको बोलते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। रिमेंबर, रिवर्स रेपो रेट इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ रेपो रेट। उसकी जगह पे नया टर्म आ गया स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जिस रेट पे बैंक्स जो हैं वो अपनी पैसा जो है पार्क कर सकते हैं विद आरबीआई। That is the rate at which banks can park their money with RBI, and that is 25 basis points below repo rate। Repo rate is 6.5%, SDF is 6.25%। और रेपो रेट से ऊपर एक और रेट होता है विच इज कॉल्ड एज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF। वो 25 बेसिस पॉइंट और ऊपर होता है ऑन फ्रॉम रेपो रेट विच इज 6.75%। ठीक है, विल इन कोर्स ऑफ टाइम विल डिस्कस व्हाट दीज रेट्स आर। देन another article, extending deposit insurance cover to bank PPI। तो इसमें आपको पता होना चाहिए there is this organization called as Deposit Insurance Guarantee Corporation। और ये क्या करता है, ये बेसिकली सारे डिपॉजिट्स को किस को करता है। अगेन प्रीलिम्स, टिपिकल प्रीलिम्स क्वेश्चन। अब सेकंड कॉलम में फर्स्ट पैराग्राफ देखो, इसके अंदर आपके पास सारी चीज़ें दे रखी हैं जिसको ये कवर करता है। ये 5 लाख तक आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को कवर करता है। किस चीज़ को? सेविंग डिपॉजिट को, फिक्स डिपॉजिट को, करंट डिपॉजिट को, रेकरिंग डिपॉजिट को। तो अगर कोई पर्टिकुलर बैंक आपका फेल हो जाता है और आपके पास 5 लाख रुपए तक पड़े हैं तो वो उसको इंश्योरेंस दे देता है। और इसमें बेसिकली कह रहा है कि हम पीपीआई इंस्ट्रूमेंट्स को ऊपर भी देंगे। और लास्ट पैराग्राफ ऑफ फर्स्ट कॉलम के अंदर यू विल गेट व्हाट आर दीज पीपीआई instruments। तो read about this PPI instruments। then
नेक्स्ट थिंग इज सर्विसेज आउटपुट। थर्ड ऑफ एवरी मंथ को सर्विसेज पीएमआई भी आता है। पीएमआई के दो फ्लेवर आते हैं, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग, पीएमआई सर्विसेज। फर्स्ट को आता है पीएमआई सर्विस मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड को आता है पीएमआई सर्विसेज। और इसके अंदर पीएमआई सर्विसेज के बारे में बात रखी है कि पीएमआई सर्विसेज हैज़ बी ऑल्सो बीन एक्सपैंडिंग एट अ वेरी हाई पेस। एंड रिमेंबर, अगर पीएमआई 50 से ज़्यादा है तो आपका एक्सपेंशन फेज है इकोनॉमी का, ठीक है, ये याद रखना। That's it from the Indian Express, folks. Let's quickly see the Hindu. Very important article, folks. First page. Monsoon stares at a cyclone threat. पहले तो आपको जो चीज़ सर्च करनी है, टाइम मिले तो सर्च करना, साइक्लोन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक होता है टेम्परेट साइक्लोन। बेस्ट चीज़ किसका, यूट्यूब पे वीडियो देख लो कि क्या है ये, ठीक है। बाद में जब ज्योग्राफी करोगे तब आप करते रहना इस चीज़ को। दूसरी चीज़ सर्च करोगे, साइक्लोन की नेमिंग कैसे होती है इंडियन ओशन में, ठीक है। इस साल ये जो इंडियन ओशन में कुछ कंट्रीज़ हैं, ये सारे के सारे एक एक करके नेम करते हैं, ठीक है। तो नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स के ऊपर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और मुझे ये क्वेश्चन हमेशा याद रहेगा क्योंकि मेन्स में एक बार क्वेश्चन ये गलत लिखा था, ठीक है। नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स के ऊपर आया था, मैं उसको लिख रहा, मैंने उसका आंसर लिखा था कि उसको हरिकेन बोलते हैं, कहीं पर टाइफून बोलते हैं, कहीं पर और इंडिया के अंदर उसको साइक्लोन बोलते हैं। क्वेश्चन ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन पूछा था नेमिंग ऑफ हाउ इज़ द नेमिंग डन इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में कौन सी कंट्री कब करती है। तो ये 10-15 कंट्रीज़ हैं इंडियन ओशन की जो बाय ऑल्टरनेटिव वेज जो नया साइक्लोन आएगा एक नई कंट्री उसको नेम करेगी, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए। अब क्या है, 5 जून के अराउंड इंडिया को टिपिकली रेनफॉल आना शुरू हो जाता है, इंडिया के अंदर मानसून फिट इन करना शुरू हो जाता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई सरप्राइजिंगली, मेरे पास ज्योग्राफी ऑप्शनल था तब भी मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। पेज नंबर 10 पे जाओ, इसका कॉन्टिन्यूशन है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड नीचे आपका मॉनसून स्टेयर्स एट साइक्लोन थ्रेट है, उसमें रेनफॉल इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया बाय विच IMD डिक्लेयर्स मॉनसून एडवेंट। सिर्फ रेनफॉल नहीं होता कि बारिश होगी तो आपका मानसून आ गया। इट इज़ विंड स्पीड्स ऑफ मिनिमम स्ट्रेंथ, डेप्थ ऑफ एटमॉस्फेयर, ऑनगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, अ मेजर ऑफ क्लाउडीनेस, consistent rainfall over 2 days. All of these things combined together to suggest whether monsoon has arrived or not. तो typical prelims question है ये कि how do you assess कि monsoon आया नहीं आया। और इस बार क्या हुआ है कि अब डिप्रेशन एक बे ऑफ बंगाल के अंदर डिप्रेशन आ गया जिसकी वजह से साइक्लोन बन रहा है। और हो सकता है वो साइक्लोन जो है वो हो सकता है वो यमन की तरफ चला जाए या इंडिया की कोस्ट की तरफ चला जाए, ठीक है। तो अब वो आपको जब आप साइक्लोन्स के बारे में पढ़ोगे तो यूजुअली आप देखोगे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। ज्योग्राफी के अंदर पढ़ोगे कोरियोलिस फोर्स, तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से साइक्लोन्स कई बार इधर उधर मूव करते हैं, बट टिपिकली दे मूव टूवर्ड्स दी वेस्ट। जब भी नदर्न हेमिस्फेयर में आते हैं तो वो वेस्ट की तरफ जाना शुरू कर देते हैं क्योंकि कोरियोलिस फोर्स उसको उस तरफ ले आती है। बट इंडिया के केस में क्या है कि देर इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव पॉइंट ऑफ टिबेट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो प्रेशर डिफरेंस हो जाता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लो प्रेशर है, इसलिए सारी विंड्स उस तरफ आनी शुरू हो जाती है। सो रीड अबाउट मानसून, जब आप मानसून के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें आएंगी कि क्यों इंडिया को मानसून, ये उसको साउथ वेस्ट मानसून बोलते ही क्यों है, ठीक है। तो यू कैन रीड अबाउट दैट। Then among the articles, in short term stabilize the line of actual control, a very good article इंडिया और चाइना के ऊपर। इंडिया और चाइना ने पिछले कई सालों से यू हैड मल्टीपल एग्रीमेंट्स फॉर रिजॉल्विंग दिस बाउंड्री इशू। तो यू नीड टू नो, स्पेशली अगर आपका PSI और ऑप्शनल है, यू नीड टू नो दैट 1993 के अंदर हमने एग्रीमेंट किया, 1996 के अंदर एग्रीमेंट किया, 2015 में किया और 2013 में किया। नाउ इज़ अ टाइम विच, जिस तरीके से हम देख रहे हैं हर कुछ सालों में हो रहा है, दिस इज़ द राइट टाइम टू हैव अनदर अग्रीमेंट विद चाइना विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री सेटलमेंट। और यही ये बता रहे हैं कि हमारे बाउंड्री सेटलमेंट की बहुत सारे जो प्रीवियस इश्यूज़ हैं वो हमने अभी तक रिजॉल्व नहीं किए।
इंडिया का आज की डेट में आफ्टर द 2013 वाला जो वो है, सॉरी आफ्टर द 1993 वाला जो अग्रीमेंट है, हमने कहा था हम जॉइंट मैकेनिज्म करेंगे फॉर LAC डिस्प्यूट्स, और उसके लिए हमने 2012 में एक वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, WMCC, ये आपको याद रखना है। देखो कई चीज़ें आपको टेक्निकल याद रखनी पड़ेंगी आंसर लिखने के लिए। आप जनरलिस्ट आंसर नहीं लिख सकते कि यार इंडिया और चाइना का ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। जनरलिस्ट आंसर लिखोगे तो बिल्कुल जनरलिस्ट नंबर मिलेंगे। इफ़ यू वांट टू स्कोर मोर देन 110 120 इन योर GS पेपर्स, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग। तो ये जब तक आपने ये चीज़ें नहीं लिखी, जब तक आपने ये WMCC विच इज़ वेरी स्पेसिफिक कि यू नो व्हाट इज़ दी व्हाट अंडर व्हाट एजेस वी आर टॉकिंग अबाउट, तो तब तक आपको मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो इट मीट्स दिस WMCC मीट्स ट्वाइस एन ईयर, बट कुछ ज़्यादा इसका आउटकम नहीं आया, ठीक है। एंड देन व्हाट कंसिडर दी स्टेप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या क्या स्टेप्स, व्हाट इज शुड बी दी वे फॉरवर्ड। तो बेसिकली ये बता रहा है कि हमें LAC को लाइन ऑफ कंट्रोल बनाना चाहिए। अब LAC क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो हमारी चाइना के साथ है, LOC जो है वो हमारी पाकिस्तान के साथ है, जहाँ पर बहुत ही डिलिनेटेड, अच्छे से डिलिनेटेड है कि ये पाकिस्तान का एरिया है, ये इंडिया का एरिया है, जहाँ पर बॉर्डर बिल्कुल अच्छे से डिफाइंड है। बट चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है वो अच्छे से डिफाइंड नहीं है, इसलिए वहाँ पर हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, कहाँ पर डी फैक्टो कंट्रोल चल रहा है। बट वो जो डी फैक्टो कंट्रोल है उसको हमें डी ज्योर कंट्रोल में कन्वर्ट करना है थ्रू मैकेनिज्म एंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग कहाँ कहाँ इश्यूज आ रहे हैं। तो यही वो आर्टिकल बता रहा है कि कैसे आप उसको कर सकते हो। Then I on oil, basically India must bring pump prices of petrol and diesel in line with global prices। तो बेसिकली ये हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि हमने कल OPEC प्लस के बारे में बात करी थी, और OPEC प्लस जो है वो अपने ऑयल प्राइसेस इंक्रीज कर रहा है। तो ये बेसिकली कह रहा है कि हमें भी अपने ऑयल प्राइसेस को उसी को मार्केट को रिफ्लेक्ट करवाना चाहिए, ठीक है। तो हम अपने पंप प्राइसेस को ग्लोबल प्राइसेस के साथ में रिफ्लेक्ट हमारे होने चाहिए। सो रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, बट इसका जो मेजर वो है OPEC प्लस और OPEC की कंट्रीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको मार्क करनी है अपने वर्ल्ड मैप पे। प्रोजेक्ट ट्रैक आप पढ़ सकते हो। रेलवेज मस्ट नॉट लूज फोकस ऑन सेफ्टी एज इट एक्सपेंड्स इट्स सर्विसेज, ऑलरेडी हमने इसके बारे में कुछ बात करी हुई है। देन अ लॉट ऑफ दिस इज रेपिटेशन। नाउ what you need to read here is text and context के अंदर what is affecting trade momentum। तो ट्रेड मोमेंटम जो है हमारा जो है वो ग्लोबल ट्रेड में कहाँ कहाँ मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो ग्लोबल ट्रेड में प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि कई कंट्रीज़ जो हैं अब रिसेशन के थ्रू जा रही हैं। एडवांस कंट्रीज़ में उन्होंने इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा बढ़ा दिए और अभी भी उनके अंदर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं तो उनकी GDP कम हो रही है। अगर उनकी GDP कम होगी, बेसिकली इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट आर इन्वर्सली एसोसिएटेड। इंटरेस्ट बढ़ाओगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो आपका GDP ग्रोथ रेट कम होगा। तो what these advanced countries are showing is that their growth is a little susceptible this in these couple of years because of high inflation। और अगर उनका ग्रोथ नहीं होगा, अगर if their GDP is not growing, तो उनके imports नहीं बढ़ेंगे। इंपोर्ट तो तब करते हो ना जब आपके पास ज़्यादा पैसा आता है। इफ़ यू हैव मोर मनी दैट यू विल इम्पोर्ट। अगर उनका GDP नहीं बढ़ रहा तो दे विल नॉट इम्पोर्ट। तो इसीलिए वन ऑफ द फैक्टर्स वाई ट्रेड जो है वो उसका मोमेंटम जो है वो स्लो हुआ है बिकॉज ऑफ दिस। देन these are headwinds। then apart from that financial institutions जो है that has also broken down। तो there are different banks which broke down। for example you have this Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank। तो बैंकिंग इंडस्ट्री हैज़ बीन इन फ्लक्स इन द लास्ट few months। एक और तो ये बैंक US में भी है और यूरोप में भी है, क्रेडिट स्यूस इन यूरोप। तो ऑल द बैंकिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो इन फ्लक्स, प्लस क्रिप्टोज का जो क्रैश है उसकी वजह से भी इम्पैक्ट आया इन सब के ऊपर। तो दैट इज़ अनदर रीज़न वाई द ट्रेड इज़ नॉट एट द राइट फ्लो। देन हाँ, तो बस ये मेजर चीज़ें आर्टिकल की। तो यू कैन रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। then read another article which is text and context में large hadron collider search for Higgs boson decay continues।
तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ दिस हिग्स बोसॉन क्या कहते हैं डिके। और ये आर्टिकल, ये जो फंडामेंटल फिजिक्स है, दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फिजिक्स, इसके अंदर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वी हैव द वर्ल्ड इज स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स to seek this fundamental elements of physics. तो what is Higgs boson, ये आपको पता होना चाहिए. It is the force carrying the subatomic particle. तो ये जो particle है is also called as God's particle. ठीक है. If you understand this particle, you also understand how matter was made, how universe is made. तो इसलिए इसको हम God's particle भी बोलते हैं. तो read about this particular article. I will give you इसके ऊपर ना एक और चीज़ है, मतलब इसका एक एक्सप्लेन्ड में, आई थिंक इंडियन एक्सप्लेन आज से 1-1.5 साल पहले एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल, व्हाट आई डू इज आई सर्च दैट आर्टिकल एंड सेंड इट टू यू एंड देन यू कैन रीड दिस आर्टिकल. कई बार आपको बेसिक चाहिए होता है, इसमें इसने कई चीज़ें अज्यूम करी हुई हैं कि क्वार्क्स क्या है, बोजॉन क्या है, ये आपको कई बार बेसिक्स पता होने चाहिए. एटम क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये आपको बेसिक पता होने चाहिए बिफोर रीडिंग दिस आर्टिकल. बट स्टिल गिव इट अ ट्राई एंड मे बी just highlight this. Tomorrow we can understand this article in detail. I think everything else we have already covered through this. And last business के अंदर again चलो for now I'll not do this article, but India's quantitative tightening. Tomorrow I'll start off with this article. आज थोड़ा हम लेट हो गए हैं, but tomorrow I'll start off with this particular article. This is an important article of how India has been going on the path of quantitative tightening. ठीक है. इसी से related I want you to search about there's a word called as taper tantrum. ठीक है. टेपरिंग एक वर्ड है, उसके बारे में अगर आपके पास टाइम मिले तो आप सर्च करना व्हाट इज दिस टेपरिंग. क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस होता है, उसको टेपरिंग बोलते हैं. तो बट रीड अबाउट दिस. टुमारो वील स्टार्ट ऑफ विद दिस पर्टिकुलर. हम इंडियन एक्सप्रेस से पहले ये करेंगे, ये वाला आर्टिकल करेंगे एंड देन वील मूव फॉरवर्ड टू आवर इंडियन एक्सप्रेस. ठीक है. एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू सेंड यू द समरी टुडे. अब आपके ऊपर है, आप फोरम से पढ़ना चाहते हो या किसी से भी पढ़ना चाहते हो, बट उसको आपको शॉर्ट करना है. यू कांट अफोर्ड 13 पेजेस. 13 पेजेस आपने करने लग गए तो आपके पास मंथ के एंड के ऊपर आपके पास 400 पेज हो जाएंगे. इतनी बड़ी गट्ठा हो जाएगा आपके पास, तो उसको रिवाइज कैसे करोगे. ठीक है. सो रिडक्शन एंड जो उन्होंने बनाया उसको भी और रिड्यूस करो, उसका भी आप वो और कम करो, फॉन्ट कम करो और उसको रिड्यूस करो. ठीक है. सो यू शुड हैव इट इन 2-3 साइड्स, बस उतना ही कर सकते हो आप. तो ट्राई टू डू दैट. And I'll also send you another copy of that current affairs जो आज मैं बनाऊंगा, and you can have a look at that. ठीक है. So okay folks, you go ahead and make it a productive day. We'll meet tomorrow at 5 a.m. and on Saturday we are going to have a session. This Saturday we are going to have a session with the new people who have come up. I wanted to discuss certain things in terms of setting of your schedule, which the old ones already know because they have been there since February this year. ठीक है. So do tune in on Saturday as well. ठीक है. चलो, make use of this productive day and sit back for studying again. चलो. Okay folks, bye bye, have a great day.